Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. And today we have the 10th lecture of Linear Algebra. If you remember the first lecture of Linear Algebra, I have provided you the course outline in the first lecture. At the 10th lecture, we have covered almost I have called the first part of the Linear Algebra, in which we have to discuss the solution of system of linear equation and their terminologies: linearly independent set of vectors, linearly spanning set of given vectors, and so on and so forth. तो आज के 10th लेक्चर में हमने हमने फर्स्ट पार्ट जो लीनियर अलजेब्रा कोर्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो आपको बताया था, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक जो है, ये हमने आज 10th लेक्चर तक जो है कवर कर लिया पार्ट 1 का. दैट्स व्हाई इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस और रिवाइज all these concepts which we have learned in the last 9 lectures. तो आज के लेक्चर में जो है हमने रिवीजन करनी है. जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने लास्ट 9 लेक्चर्स में स्टडी किए थे, वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा बिफोर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोर्स. अगर आपको याद हो कि जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके कोर्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था. पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया. So I want that before I move to the second part of the course, I should revise the key concepts, the key results of the previous 9 lectures. अब last lecture में, if you remember, we have discussed the linear transformation. Linear transformation geometrically define की गई थी और उसके correspond we defined the matrix of transformation. ये second 8th lecture था. और 9th lecture जो आपका था, last lecture जो कि बनता है, उसमें हमने एप्लीकेशन स्टडी की थी, जिसमें यू हैव सीन दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन थ्योरेटिकली विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी अप्लाइड फॉर गेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन आवर फिजिकल वर्ल्ड. उसमें 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी. 1 एग्जांपल वाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, द सेकंड एग्जांपल वाज फ्रॉम केमिकल बैलेंसिंग, एंड द थर्ड एग्जांपल वाज फ्रॉम द नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम. अब नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम जो है, ये आपका रोड नेटवर्क भी हो सकता है, आपका डाटा ट्रांसफर नेटवर्क, एज वी ऑल यूज द इंटरनेट एंड इन आवर मोबाइल्स एंड आवर कंप्यूटर्स. सो नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो किसी किस्म का भी हो सकता है. जैसे हमने एग्जांपल्स की थी कि रोड नेटवर्क प्रॉब्लम में वी हैव टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इनटू डिफरेंट नोड्स एंड रोड्स which are part of our network. So आज के लेक्चर में as usual I will start by solving some of the practice problem, and then we will see what are the key concepts or key results which we have discussed in the previous 9 lecture. तो आज का लेक्चर जो है ये रिवीजन लेक्चर है. क्यों? Why this is the revision lecture? Because we are moving towards the second part of our course. So I just want to recall everything or some important results which we have learned in the last 9 lecture. So let's start the lecture. Today we have the 10th lecture, which is the revision lecture, as I told you. So the first practice problem is balance the chemical equations A, aluminum oxide and carbon reacts to create elemental aluminum and carbon dioxide. So this is the equation, chemical balance equation or chemical reaction, and we have to balance this chemical reaction. So I will put x1 here. I have to find x1, x2, x3 and x4. So in my chemical reaction we have aluminium Al, oxygen O and carbon only. So I create this vector in this order: aluminium, oxygen and carbon. So next step is I have to form a vector equation correspond to this equation, which says that x1 वेक्टर इक्वेशन जो है
फर्स्ट पार्ट की वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ. x1 into, in the first part I have 2 atoms or molecules of aluminium and 3 of oxygen and no carbon, plus x2, here I don't have aluminium, so 0. Here I don't have oxygen in this factor, so I put here 0, and I have only 1 atom of carbon, so this is x2, and it should be equals x3 into aluminium. I have only 1 atom of aluminium. Oxygen, no, in this term I have no oxygen, I have no carbon. Similarly, x4 into the vector carbon, aluminium 0, oxygen 2 and carbon 1. So this is the vector equation corresponding to this chemical reaction, and I can write down this vector equation as x1 2 3 0 plus x2 0 0 1 plus x3 minus 1 0 0 plus x4 0 minus 2 minus 1 equals the null vector of R3. So I have to solve this homogeneous system of linear equation, and we know that this vector equation is equivalent to A x equals 0, where A equals, the columns A is constituted as 2 3 0. These are the columns of A: 0 0 1 minus 1 0 0 minus 2 minus 0 minus 2 and minus 1. This is the matrix, and these two equations, the vector equation and the matrix equation, are equivalent. Similarly, we can form, now you can solve it. I am not going to solve this one because we have done a lot of questions like this, and you will be able to solve this system corresponding to the vector equation, which is a homogeneous system. And recall that a homogeneous system always has a trivial solution. So we are interested in non-zero or non-trivial solution. And whenever we have a non-trivial solution for the homogeneous system, then we must have at least one free variable. Similarly, we can formulate a vector equation corresponding to this chemical reaction. Where we have sodium, our vector will be sodium Na, let's say hydrogen at the second place, carbon at the third place, oxygen at the fourth place. We have hydrogen, carbon, hydrogen, oxygen, and none other than these 4 elementary matters: sodium, hydrogen, carbon and oxygen. So I am going to form only the vector equation. For let's say x1, I put x1 here, x2 here, x3 here, x4 here, and x5 here. So the vector equation corresponding to this chemical reaction is x1 into sodium 1, hydrogen 1, carbon 1 and oxygen 3, plus x2 hydrogen, sodium 0, hydrogen 3, carbon, hydrogen के इनफैक्ट 3 and 5 ये 8 बन जाते हैं. So here I will put 8, carbon 6 and oxygen 7. It should be equals x3 and the vector sodium Na 3, hydrogen 5,
carbon 6, oxygen 7, plus X4, here we have water, H2O, sodium 0, hydrogen 2, carbon 0 and oxygen 1, plus X5 equals multiplied by sodium 0, hydrogen 0, carbon 1 and oxygen 2, CO2, carbon dioxide. So this is the vector equation, and you will be able to solve this vector equation as we have solved many times. So let's move to the next slide. As I told you, this is the revision lecture, as we have completed the part 1 of our course, which I have described in the first lecture, and we are moving to the part 2. So I would like to recall you some important definitions, some important results which we have learned in the last 9 lectures. So first of all, the system of linear equation. Linear equation means the power 1, and we have the equations, and in the equations here we can have the 0 vectors which we define the homogeneous system. Generally this is a 2 by 3 system of linear equation. We have 2 rows and 3 columns in the matrix of coefficient, which is matrix of coefficient भी हमने define किया था, जो के वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स जो होते हैं उन पे कंसिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या है? 2, -1, 3, -1, 5 and 1. This is the matrix of coefficient for this system. And if I have to write down the augmented matrix, then I will add to this matrix another column corresponding to this B. Similarly, this is the order of the matrix of coefficient for here, for this system, will be 3 by 4, because we have 4 variables and 3 equations. So the coefficient matrix will have 3 by 4 order. Generally speaking, a system of linear equation with m equation and n variables is written as here, and the matrix of coefficient will have m cross n order, m by n. We read it as the matrix of order m by n, where our B vector correspond to these values. We have m equations and n unknowns. What does it mean by the solution of the system of linear equation? Any order pair, if we have a system of linear equations 2 by 2, we have 2 equations or 2 unknowns. Any order pair which satisfy these 2 equations, then we will say that this order pair is a solution of the system of linear equation. Similarly, for example, we have done this example. Is 3, 4, -2 a solution of the following system of linear equation? So ये solution होगा 3, 4, -2 order tuple जिसे हम कहते हैं इस system का, अगर मैं x1 equals 3, x2 equals 4 and x3 equals -2, इन तमाम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूं these values of x1, x2 and x3, then these equations satisfies. If all these equations are satisfies, then I will say that the order tuple will be a solution of this system of linear equation. Similarly, if we have system of linear equation with m equations and n variables, then an n tuple, order pair, order triples, and n tuple mean a ordered set which has n elements, s1, s2 and so on and so forth, sn. So x1 will have s1, x1 will have s1 value, x2 will have s2 value, so on, the variable xn will have sn. So this n tuple will be a solution if all m equations, whenever we substitute these values of the variables, all equations are satisfied. Then we will say that this is a solution of this system of linear equation. So
कोई भी अगर आपको ऑर्डर पेयर या कोई भी पेयर दिया जाए, एन टुपल दिया जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यू शुड बी एबल टू वेरीफाई दैट सोल्यूशन सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस का सोल्यूशन है भी या नहीं है. Then we have realized that system of linear equation, there are three different possibilities. That a system of linear equation has a unique solution, only one solution. System of linear equation has infinite many solutions, and system of linear equation has no solution. If the first two possibilities we define, we will say the system is consistent. And if this possibility is true, we say that system is inconsistent. ये आपको just recall करवा रहा हूँ, ये हमने किया हुआ है. A system of linear equation is said to be consistent if it has either one solution or infinitely many solutions. A system of linear equations is inconsistent if it has no solution. अब हाउ टू डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, और ये वही मेथड है जो हमने पहले से सीखा हुआ है कि अगर 2x2 इक्वेशंस हो, आपने पहले से ये सीखा हुआ है कि उनको सॉल्व करना है आपने, तो आप क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल का, लेट्स से x1 वेरिएबल का कोफिशिएंट इन बोथ इक्वेशंस सेम करते हैं और इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है वन वेरिएबल में, लेट्स से x2 वेरिएबल में. अगर 2x2 का आपका सिस्टम है, आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं. तो जो ऑपरेशंस हम करते हैं फॉर गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो तीन टाइप के वो स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन स्वैप कर दी जाए, उसका जगह दूसरी इक्वेशन को और इंटरचेंज कर दी जाए इक्वेशंस, तो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चेंज नहीं होता. एंड इक्वेशन है बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, तब भी सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. An equation is replaced by the sum of itself and a multiple of other equation. अगर एक इक्वेशन को जब हम एलिमिनेट करते हैं दो वेरिएबल्स 2x2 सिस्टम में से वन वेरिएबल को, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वन वेरिएबल का सेम करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि हम एक इक्वेशन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय सम ऑफ मल्टीपल ऑफ other equation. So solution of the system of linear equation remains the same by applying these three basic operations. Based on these three basic operations, we have defined the elementary row operations on the matrices. The interchange of two rows of a matrix, scaling of a matrix, exactly same, because we have learned the terminologies of the matrices for the solution of the system of linear equation. तो इन रो ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं ये. Then we have defined the row reduction and echelon forms of a given matrix. We have defined the leading entry. Leading entry क्या होती है मैट्रिक्स में, किसी भी रो में the first non-zero entry is known as the leading entry. Echelon form हमने डिफाइन की थी. A rectangular matrix is in echelon form if it has the following three properties. और ये following three properties जो है ये हमने echelon form हमने निकाली है लास्ट 9 लेक्चर में काफ़ी. और all non-zero rows are above any rows of all zeros. It means कि अगर आपके पास कोई भी zeros वाली रो है वो सबसे below होगी, non-zero rows जो है वो above होंगी. Each leading entry in a row is in the column to the right of the leading entry. अगर लीडिंग एंट्री है तो वो प्रीवियस रो की लीडिंग एंट्री के राइट पे हमेशा होगी, लेफ्ट पे नहीं आ सकती लीडिंग एंट्री. ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो. लीडिंग एंट्री के तमाम नीचे जो एलिमेंट हैं कॉलम में वो तमाम जीरो होने चाहिए. लीडिंग एंट्री इज द नॉन जीरो एलिमेंट इन योर कॉलम. रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो है, इसी एचेलॉन फॉर्म पे हम दो और कंडीशन लगाते हैं कि हर लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है और लीडिंग एंट्री सिर्फ
नॉन जीरो एलिमेंट है इन ईच कॉलम कंटेनिंग द लीडिंग एंट्री, उस कॉलम का नाम हमने पिवट कॉलम रखा हुआ है और लीडिंग एंट्री की पोजीशन को हम पिवट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इज नॉट अ पिवट कॉलम। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपका कोई इस तरह का कॉलम आ जाए, देन वी कंक्लूड दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, in fact such a row corresponds to 0 equals b where b is non-zero number। अगर b non-zero number है तो ये obviously not true है। ये बड़ा strong criteria था inconsistent system को categorize करने के लिए। Then let's see a question, find the general solution of the system whose augmented matrices are, these matrices are the augmented matrices। इट मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करना ये हमने सीखा हुआ है कि ये आपका इक्वेशंस का राइट हैंड साइड है और एवरी कॉलम corresponds to one variable। So how many variables we have? x1, x2, x3, x4 and x5। So my third row becomes x4 plus 9 times x5 equals 4, which gives me x4 equals 4 minus 9 times x5। अब हमने दो टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए कि ऐसा वेरिएबल जो कि जिसकी वैल्यू by taking some value we are having the value of the other variable, such a variable is known as the free variable। और बाकी जितने भी फ्री वेरिएबल आप कैटेगराइज करेंगे और बाकी जितने भी वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज फ्री वेरिएबल्स को की वैल्यूज एज्यूम करके आ रही हैं उनको हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल। सो दिस इक्वेशन tells me that x4 is the basic variable whereas x5 is a free variable because x5 की वैल्यू कोई एज्यूम करने से मेरे पास x4 की वैल्यू आ रही है and I can take any value of x5। इसको हम कहते थे x5 is free variable, ठीक है। और x4, अब सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं इनटू इक्वेशन दैट विल गिव मी x4 minus 4 times x5 equals 1 and I am having x2 equals 1 plus 4 times x5। so x2 भी मेरा जो है बेसिक वेरिएबल है और उसकी भी वैल्यू x5 की वैल्यू से ही आ रही है, x5 मेरा फ्री वेरिएबल है। इक्वेशन नंबर 1 जो है corresponding to this matrix, this give me x1 minus 3x2 minus x4 equals minus 2। so x1 equals minus 2 plus 3x2 plus x4। x4 की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, it will further become minus 3 plus 3x2 plus 4 minus 9x5। अब x1 की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 plus 3x2 minus 9x5। x1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है x5 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज लेने से या सेम वैल्यूज लेने से। सो x2 भी जो है ये मेरा फ्री वेरिएबल आ गया, दिस इज माय फ्री वेरिएबल and x1 is my basic variable। so we are having x2 expression of x2 also, sorry। so x2 भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ तो x1 की वैल्यू भी मेरी इन टर्म्स ऑफ x5 में आ जाएगी x5 में। so x5 भी जो है वो मेरा फ्री वेरिएबल होगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे तमाम वेरिएबल्स के बारे में मैंने डिसाइड कर लिया कि वो फ्री वेरिएबल्स हैं या बेसिक वेरिएबल हैं। x1 is basic variable, x2 is basic variable, x4 is basic variable and x5 is free variable। कोई भी इक्वेशन जो है उसने मुझे x3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। so I conclude that my x3 can assume any value, such a variable is known as free variables। so in this matrix we have two free variable x3 and x5 which can take any value and we have three basic variable x1, x2 and x4। similarly you can do for this matrix। in fact ये questions जो हैं ये मैंने
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से आपकी लिए हुए हैं, जो मैंने आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दिए थे। अब आर एन स्पेसिस जो है, ये मैंने वर्ड कहा था आपको, हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे स्पेसिस का इन द कोर्स लीनियर अलजेब्रा। और इनफॉर्मली मैंने आपको बताया था कि स्पेस जो है ये एक सेट है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और स्पेस वी कॉल इन लीनियर अलजेब्रा, इनफॉर्मली बता रहा हूँ, फॉर्मली वी विल डिफाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि सर्टन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। और हमने स्पेस पढ़ा था वेक्टर्स इन आर एन। आर एन को मैंने एक यूक्लिडियन स्पेस भी इसको कहते हैं, और ये भी एक स्पेस है। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज हम जनरली किसी भी सेट के लिए पढ़ेंगे। आर एन का कोई से भी दो वेक्टर्स आप लें तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्पेस, एंड वेक्टर स्पेसेस वी विल डिफाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। इनकमिंग लेक्चर्स में हम फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि वेक्टर स्पेसेस की एक्सियम्स जो हैं वो क्या हैं, किन सेट्स को हम वेक्टर स्पेसेस कहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको कहा था कि आर एन जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, और इसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। अब ये आर एन जो है, इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, इसके वेक्टर्स जो हैं वो किस तरह के हैं? इनफैक्ट इसके वेक्टर्स जो हैं, इसके कंपोनेंट्स जो हैं हर वेक्टर के, देयर आर एन कंपोनेंट, लेट्स से x1 x2 सो ऑन xn कंपोनेंट। अब r2 भी हो सकता है। r2 अगर होगा तो r2 के वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे? ओनली 2 कंपोनेंट। R3 भी हो सकता है, R10 भी हो सकता है। R10 में कितने वेक्टर? एवरी वेक्टर हैज 10 कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। इट कुड बी 0, इट कुड बी नॉन जीरो, और इट कुड बी नेगेटिव नंबर्स आल्सो। सो द वेक्टर्स ऑफ Rn satisfy these conditions. You can verify all these conditions that the vectors of R2, let's say, satisfy these conditions, and we can formally prove all these conditions, जो कि हम linear algebra के कोर्स में for the time being नहीं करेंगे। Then one of the basic concepts in linear algebra is linear combination of vectors. कोई से भी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स किसी भी स्पेस में से दिए गए हों, लीनियर कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। लेट्स से वी हैव p वेक्टर्स v1 v2 up to so on vp, and we have different scalars. Then a vector which is formed by combining c1 v1 plus c2 v2 up to so on and so forth cp vp, this is known as a linear combination. We will call y, that y is a linear combination of v1 v2 up to so on vp. A vector equation is such that v1 v2 vp with weights c1 c2 and cp, we have this vector equation, and this vector equation, if this vector equation has a solution, then we will say that b is a linear combination of the given vectors v1 v2 so on and vn. Now this vector equation, if we have to solve this vector equation, then we have to solve this augmented matrix, and this augmented matrix is correspond to the system ax equals b, where a has columns v1 v2 up to so on vn, and b is also given. So this vector equation and this matrix equation both are equivalent. Both are equivalent and both have the same solution. If this vector equation has the solution, this matrix equation will have the solution, and vice versa. और यही हम करते थे कि if we have to check whether a given vector is a linear combination of the certain vectors, then we always write down the linear combination equals to b and try to find out the values of the scalars, try to find out the values of the constants, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम, जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे ये लिखा गया। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, then b could be written as a linear combination of the vectors v1 v2 up to so on vn, and could be any positive integer. अगर inconsistent होगा, then this equation is not true, which means b cannot be written as a linear combination of the
vectors v1 v2 up to so on vn. अब एक सेट जो है लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देन वी डिफाइन अ सेट गिवन वेक्टर एज स्पैन. स्पैन इज द सेट ऑफ all linear combinations of the vectors v1 v2 up to so on vn. Different linear combinations. linear combination की definition क्या है कि ये c1 c2 c3 real numbers हैं, scalars हैं. Now c1 c2 c3 जो हैं ये scalar real numbers से हैं. real numbers infinite हैं, infinite many possibilities हैं इनकी. तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन वेक्टर्स के कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स हो सकते हैं. उन तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस को हम एक सेट में डाल देते हैं. उस सेट का नाम जो था वो स्पैन था, स्पैन ऑफ द गिवन वेक्टर्स. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में. अब जब ये वेक्टर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, इस वेक्टर इक्वेशन का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि we are able to find the values of c1, c2, cn such that this equation holds. इसका मतलब ये होगा कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है, तो आपका b वेक्टर जो है वो बिलोंग्स टू स्पैन में होगा ऑफ दीज वेक्टर v1 v2 so on v. अगर ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट आता है तो b इज नॉट इन द स्पैन ऑफ v1 v2 up to so on vn. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. दैट्स व्हाई आई पुट इट इन दिस लेक्चर. स्पैन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है वो यहाँ पे मैंने कलेक्ट की हुई है, राइट डाउन की हुई है. गिवन p vectors are in Rn, then the set of all linear combinations of denoted by span of this one and is called the subset of Rn spanned or generated by this one. That is span. अब ये बड़े इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर v1 v2 अप टू सो ऑन vp जो है लेट्स से Rn में से हैं, तो स्पैन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी Rn में से ही होगा. c1 c2 cp ये भी Rn में से होगा. अब हर लीनियर कॉम्बिनेशन अगर Rn में से है तो स्पैन जो होगा, स्पैन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vp, ये क्या होगा? ये सबसेट होगा Rn का अगर वेक्टर्स Rn में से. अब वेक्टर्स R2 में से हो सकते हैं, R3 में से हो सकते हैं, R4 में से हो सकते हैं, so on and so forth. अब ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बात बता दी, अ गिवन वेक्टर इज इन स्पैन इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द कांस्टेंट c1 c2. दिस इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन व्हिच मींस c1 c2 cp का हम कांस्टेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो. और ये इक्विवेलेंट होता है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है कि स्पैन of given vecters is always a subset of from which space the vectors are. Let's say अगर v1 equals 1 2 है और v3 equals let's say 7 and 5 है, ये दोनों vectors जो हैं R2 में से हैं, तो span of v1 and v2 will be a subset of R2. इक्वल भी हो सकता है. हमने इनफैक्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं कि इक्वल के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे. वी विल टेक द आर्बिट्रेरी एलिमेंट. तो ये देखते भी हैं आगे में भी आपकी स्लाइड्स में आ जाए. द मैट्रिक्स इक्वेशन, फिर हमने मैट्रिक्स इक्वेशन की थी. इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉलम्स a1 so on and so forth an, and if b is in Rm, then the matrix equation ax equals b. a का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो x must be from the space Rn, क्योंकि अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, और b must be from the space Rm. ठीक है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन का हैज द सेम सॉल्यूशन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एज दिस वेक्टर इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज if we multiply this matrix having columns a1 a2 up to so on an with a vector from Rn x1 x2 so on xn, it will give us this
linear combination of the columns of A. This is the linear combination of columns of A. ये columns जो हैं suppose किए हुए हमने कि columns A1, A2, AN. अब इस system का इसका augmented matrix ये है और इस वेक्टर इक्वेशन का भी augmented matrix जो है अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए जाए तो यही बनता है. सो बोथ द मैट्रिक्स इक्वेशन एंड द वेक्टर इक्वेशन 1 and 2 both are equivalent and both are in fact representing the same system of linear equation. Existence of solution, the equation Ax equals B has a solution. This is very important result if and only if B is a linear combination of the columns of A. In fact ये हमने अभी जो बताया है कि columns of A का linear combination अगर हम बनाएं या matrix multiplication ये calculate करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन नंबर 2 की बनती है जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ ए का. सो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, दिस रिजल्ट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग एज वी हैव लर्नड इन दिस थ्योरम. और ऑब्वियसली अगर इसका सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, वेदर यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, तो बी को इस इक्वेशन में लिखा जाना चाहिए. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ ए का. सो Ax equals B, the matrix equation has a solution if and only if the vector B is a linear combination of columns of A. बड़ा important result है. Then we have studied let A be an M cross N matrix, then the following statements are logically equivalent. Logically equivalent statements are those statements which have the same truth value. किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो दो हो सकती हैं या वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो जितनी भी लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होंगी अगर तमाम की तमाम का ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम ही होगी, अगर एक भी उनमें से ट्रूथ वैल्यू t एज्यूम कर लेती है तो बाकी भी ऑटोमेटिकली t एज्यूम करेंगे. सच अ स्टेटमेंट इज नोन एज लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. उनकी ट्रूथ वैल्यूज जो होती हैं वो सेम होती हैं, या दोनों फॉल्स होंगी या दोनों ट्रू होंगी. तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी. फॉर ईच b इन Rm द इक्वेशन Ax इक्वल्स b हैज अ सॉल्यूशन. इक्वेशन ईच b Rm के लिए हैज अ सॉल्यूशन. इट मींस b कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A. इट मींस फॉर इफ this is true for each B, it means कि आपका columns of A जो हैं वो span भी कर रहे हैं RM को. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका हर B के लिए आपको इसका solution मिल रहा है. B belongs to RM है for every B, for every B. You have your system Ax equals B has the solution. अब हमने कहा हुआ है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, अभी पीछे रिजल्ट हमने पढ़ा, तो इसका मतलब है bx1 a1 plus x2 a2 plus so on an xn. For all B we can write belongs to Rm, we can write B as a linear combination of columns of A. अब ये सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, इसको हम क्या कहते हैं? स्पैन ही कहते हैं ना. स्पैन ऑफ A1 A2 AN, A1 A2 AN जो है ये कॉलम्स हैं ए के. तो स्पैन इक्वल्स किसके आ गया? RM के. क्योंकि स्पैन मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसेट तो होता है, तो अगर हर एलिमेंट B बिलोंग्स टू RM जो है वो स्पैन में भी चला गया तो RM सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A आ गया. इन दोनों को आप कंबाइन करें, जो प्रीवियस है कि स्पैन जो है वो सबसेट होता है, तो आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी कि ये जो लिखी हुई है A हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो. अब ये जो है ये A पिवट पोजीशन A मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है. अब इसका मतलब है कि अगर
मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है उसको एचेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करें और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज अ सॉल्यूशन, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर पिवट एलिमेंट होगा तो सॉल्यूशन भी होगा, अगर सॉल्यूशन है तो पिवट एलिमेंट भी होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट में। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट के बारे में स्टेटमेंट है, नॉट अबाउट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में नहीं है ये स्टेटमेंट। तो ये रिमार्क में जो है बताया गया है, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ईच रो जो है वो पिवट पोजीशन, पिवट एलिमेंट उसमें हो, देन योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का हर रो में पिवट एलिमेंट हो, देन योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। फिर हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आरएचएस जो है वो आपका नल वेक्टर होता है, ये इनफैक्ट 0 0 0 0 अप टू सो ऑन 0, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम के सिस्टम आपका कितनी इक्वेशन है। अगर 2/2 का हो तो ये नल वेक्टर है फ्रॉम R2, अगर 10/10 का सिस्टम है तो ये R10 में से नल वेक्टर होगा। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस का हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है कि 0 0 0, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का, देन वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल, कम से कम एक फ्री वेरिएबल जरूर मिलना चाहिए हमें सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। The homogeneous equation AX equals 0 has non-trivial solution if and only if the equation has at least one free variable. एक से ज्यादा फ्री वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक फ्री वेरिएबल जरूर होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है ये नॉन जीरो सोल्यूशन है। अब हमने ये पढ़ा हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कोई भी होमोजेनियस हो या कोई भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस हो, उसका सोल्यूशन जो होगा या इनफाइनाइट मैनी होंगे या यूनिक होगा या सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन जरूर होगा। तो यूनिक सोल्यूशन भी अगर हुआ तो 0 0 0 ही सोल्यूशन होगा, और अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन हुए तो फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। फिर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में यू विल रियलाइज दैट द स्पैन ऑफ गिवन वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, ये कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हमारा लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कोर्स विल डिपेंड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। एंड इंटरसेक्ट ऑफ वेक्टर्स इन Rn इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लें, इक्वेट करें जीरो के, ये कोरस्पॉन्ड होगा Ax इक्वल 0 के, वेयर A is the matrix formed by the vectors v1, v2 up to so on vp। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट है। अगर इस इक्वेशन का सिर्फ 0 0 0 विच इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमने नाम रखा हुआ है ट्रिवियल सॉल्यूशन हो होमोजेनियस सिस्टम का और इस वेक्टर इक्वेशन का, एक ही बात है जो भी मैं कहूं, देन वी विल से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इस इक्वेशन का एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, अगर होगा एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक से ज्यादा होगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एक तो जीरो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन एक भी आप by any method you will be able to find only one solution, then we will conclude that the given vectors are linearly dependent. Linearly dependent होंगे अगर इसका एक भी नॉन जीरो सोल्यूशन हमें मिल जाता है। Linearly independence of matrix of columns हमने पढ़ा था, ये भी exactly सेम चीज है, लेकिन कॉलम्स के लिए हमने पढ़ा है
each linear dependence relation among the columns of A corresponds to a non-trivial solution of this one. और इस तरह की हमने एग्जाम्पल्स भी बहुत सीखी थी जिसमें हम non-trivial solution of the homogeneous system of linear equation निकालते थे by finding out a relationship between the given vectors, और वो एक सिर्फ non-trivial non-zero solution होता था. non-trivial कहूँ या non-zero कहूँ, it's the same thing. ठीक है. The columns of a matrix A are linearly independent if and only if the homogeneous system AX equals 0 has only trivial solution. Of course ये ट्रू है एंड बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो लिखा हुआ है कि द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ AX इक्वल 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि इसके कोरस्पॉन्ड है. अब ये होमोजेनियस सिस्टम और ये वेक्टर इक्वेशन जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है एंड बोथ आर सेइंग द सेम थिंग. ये लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के बारे में. अगर इसका सिर्फ 0-0 सॉल्यूशन होगा देन वी विल से दैट द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. देन वी हैव लर्न दैट कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन वेक्टर्स आपको दिए गए हों और आपने चेक करना हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, वो ट्रिक्स जो हैं इस स्लाइड पे रिकॉल किए गए, इन विच यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. फॉर एग्जांपल पहला ट्रिक क्या था कि अगर आपके गिवन वेक्टर्स में नल वेक्टर हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूड दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. इसी तरह अगर आपके वेक्टर्स में एंट्रीज जो हैं वो नंबर ऑफ वेक्टर्स से नंबर ऑफ वेक्टर्स इंक्रीज कर जाएं, एंट्रीज जो हैं वो कम हो, देन वंस अगेन वी डोंट हैव टू कंप्यूट एनीथिंग, वी विल कंक्लूड दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट. यही चीजें जो हैं यहाँ पे रिकॉल की गई हैं. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर, एटलीस्ट पे एम्फसाइज कर रहा हूं, कम से कम एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स. ये पहला रिजल्ट आपको बता रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स is in S is a linear combination of the others. The above result does not say that every vector. ये बड़ा important remark था. ये मैंने आपको बता दिया, if a set contains more vectors than there are entries in each vector, then the set is linearly dependent. That is any set V1, V2, Vp where P is greater than N is linearly dependent. In fact इसकी रीज़न भी जो है वो हम रीज़न अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि आपका AX इक्वल्स 0 जो होता है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है whenever this conditions is true, that the entries of a vectors कम हो और नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हो. द अबव रिजल्ट सेज नथिंग अबाउट द केस इन विच द नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल्स द नंबर ऑफ वेक्टर्स. ये केयरफुली आपने रिजल्ट चूज करना है. इफ अ सेट S in Rn contains a zero vector, then the set is linearly dependent. ये मैंने आपको बता दिया. फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी. ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना ये लीनियर अलजेब्रा के रेस्ट ऑफ द कोर्स में बार बार आती जाएंगी. व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी देयर. ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मैपिंग. एक फंक्शन होता है फ्रॉम, क्योंकि यूक्लिडियन स्पेसेस पे हम बात कर रहे हैं तो हम लीनियर स्पेसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे. Rn to Rm is a rule that assign each vector x in Rn a vector t of x in Rn. अब जब भी फंक्शन की बात आती है तो डोमेन एंड को डोमेन भी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कॉन्सेप्ट्स जो है स्टडी करते हैं. तो डोमेन के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे मैप करवाना चाहिए. फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है, टी इस तरह की है. को डोमेन जो है वो सेट होता है जिसमें आपके
इमेजेस जो है टी ऑफ एक्स जो है ये हम कहते हैं कि इमेज ऑफ एक्स है टी ऑफ एक्स, ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो रेंज सबसेट होती है, रेंज जो होती है ये हमेशा सबसेट होती है को डोमेन की, इक्वल भी हो सकती है लेकिन सबसेट होती है, जरूरी नहीं इक्वल भी हो। लेकिन रेंज में इफ y बिलोंग्स टू रेंज है ऑफ t ट्रांसफॉर्मेशन t, देन देयर एग्जिस्ट ये साइन जो होता है ये देयर एग्जिस्ट का होता है, एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, कम अज कम एक, सच दैट tx equals y holds all those elements of codomain for which this condition satisfy। उसको हम सेट बना लेते हैं और उस सेट को हम रेंज कहते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन थी या मैपिंग थी जो कि मैपिंग होने के साथ साथ ये दो कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई करती थी। ये दो कंडीशंस क्या हैं ये मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं कि इमेज ऑफ u प्लस v इज द सेम एज द इमेज ऑफ u प्लस इमेज ऑफ v। ये केयरफुली आप अंडरस्टैंड कर लें। ये आपकी डोमेन है, डोमेन, ये आपका को डोमेन है, को डोमेन। अब यहां पे u और v दो डिफरेंट वेक्टर्स थे, u एंड v, और u प्लस v आपका ये वेक्टर बनता है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन t आपकी अगर लीनियर होगी तो आप t इसका इमेज या इन दो का इमेज जो कि tu और लेट्स से अगर tv है तो इन दोनों को ऐड करें को डोमेन में तो आंसर सेम होगा tu प्लस tv। ये को डोमेन में ऐड हो रहे हैं और आंसर इसका सेम होगा अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे आप अलहदा से इनका पहले इमेज ले लें और फिर ऐड कर लें या इसका इमेज ले लें, द आंसर विल बी द सेम। सिमिलरली स्केलर के लिए अब अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो, मैट्रिक्स के लिए ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मैट्रिक्स फ्रॉम R M टू R N डिफाइन कर लें, T ऑफ x इक्वल्स AX से, A का ऑर्डर क्या होगा, x R M से है तो N क्रॉस M होगा क्योंकि x की M क्रॉस 1 नंबर ऑफ कॉलम्स of first, number of rows of second must be same। ये डिफाइन कर लें तो that will be a linear transformation। एक मैपिंग डिफाइन कर लें Rm से Rn पे by a given matrix, then that will be a linear transformation। अब linear transformation जो होता है वो जीरो पे जीरो, नल वेक्टर को नल वेक्टर पे मैप करवाती है और ये दोनों कंडीशंस जो है एक ही कंडीशन में इस तरह भी लिखी जा सकती हैं। Then we have studied the matrix of transformation। इनफैक्ट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो डोमेन का है, पावर है Rn, वो कंसीडर करना पड़ता था In। अब In के हर कॉलम का हमने E1, E2 अप टू सो ऑन En नाम रखा हुआ था हर कॉलम का। फॉर एग्जांपल Ei क्या था, ऑल एंट्रीज आर 0। यहाँ पे कई ith पोजीशन है, ith पोजीशन, वहां पे 1, बाकी ऑल एंट्रीज आर 0। ये ei था In का, In आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है। द मैट्रिक्स A सच दैट Tx Ax। और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किस तरह करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इमेजेस देख लें E1, E2 सो ऑन En का, और उन इमेजेस को कॉलम्स बना लें ऑर्डर में, E1 का पहला कॉलम जो इमेज आ रहा है E1 का, E2 का सेकंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन T जो है वो R2 से लेट से R3 पे है, इसका मतलब ये हुआ कि
टी ऑफ E1, आप E1 आपका क्या होगा 1 0, E2 आपका क्या होगा 0 1, इनके इमेजेस देखेंगे। लेट्स से अगर इसका इमेज लेट्स से 1 0 1 है और TE2 का इमेज जो है वो 1 1 1 है, तो आपका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन A जो है वो क्या होगा TE1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम TE2 1 1 1, दिस विल बी योर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरह की हमने काफ़ी एग्जांपल्स की होंगी, जस्ट रिकॉल करवा। फिर हमने ऑन टू 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी। ऑन टू अगर होगी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक x मिलना चाहिए सच दैट t of x equals p holds, then we will say that mapping is onto, and if the mapping is onto then range equals codomain हो जाएगी, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी रेंज। ठीक है। 1-to-1 मैपिंग क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्राफिकली दिखाया गया कि दिस मैपिंग इज नॉट 1-to-1 क्योंकि एक रेंज में एलिमेंट है और डोमेन में 3 डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं जिनका इमेज जो है वो एक एलिमेंट ही बन रहा है। सो दिस इज नॉट 1-to-1। ये फर्स्ट इमेज t इज नॉट 1-to-1, ये जो है t 1-to-1 बन रहा है जहां पे आपका हर जो है एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। फिर हमने रिजल्ट्स भी किए थे कि which transformations are 1-to-1 transformation and which transformation are on-to transformation. Let T Rn to Rn, Rn to Rm be a linear transformation, then T is 1-to-1 if and only if the equation Tx equals 0 has only the trivial solution. In fact Tx equals 0 जो है ये correspond है आपके equation Ax equals 0 where A is the matrix of transformation. A जो है वो matrix of transformation आपका होगा। ठीक है। अब इसी तरह हमारा सेकंड रिजल्ट था let T Rn to Rm be a linear transformation and then let A be the standard matrix for T, then T maps Rn onto Rm if and only if the columns of A span Rm. अब अगर आप रिकॉल करें उन रिजल्ट्स को जो कि पहले हमने एक थ्योरम किया था, एक रिजल्ट किया था जिसमें हमने ये कहा था कि सिस्टम Ax equals B has a solution, then the columns of A spans Rm, ये एग्जैक्टली उसी तरह की है। spans Rm होगा, हर एलिमेंट B जो है Rm का उस वो लीनियर कॉम्बिनेशन में कॉलम्स में लिखा जाएगा। और अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन A से ही दिया गया Ax equals B फॉर ईच B belongs to Rm has a solution, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैपिंग जो है वो ऑन टू मैपिंग है। 1-to-1 होगा द कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी आप रिकॉल करें कि हमने एक रिजल्ट किया था कि कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड Ax equals 0 has only trivial solution if and only if कंडीशन ये थी, ये भी आप रिकॉल करें। तो इनफैक्ट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स भी हम कर सकते हैं जिनमें हम ये शो करें कि आपका मैपिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब T ये जो सेकंड रिजल्ट है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, बोथ वे जो है ये आपका चल रहा है। T इज 1-to-1 इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ द कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने जो है सोल्यूशन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू A उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो ये यहाँ पे थ्योरम जो है आपको बता रहे हैं। अब अगर आपको कोई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई हो और आपसे ये कहा जाए कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिन करें
कि ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है या वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इन्हीं दो रिजल्ट्स को यूज करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वन टू वन है या ऑन टू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कॉलम्स जो हैं वो स्पैन कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, और हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो यूनिक होता है। अगर उसके कॉलम्स जो हैं स्पैन कर रहे हैं कोडोमेन के हर वेक्टर को, देन वी विल से दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू। अगर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि अगर आप एचिलॉन फॉर्म जो है वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की निकाल लें, तो एचिलॉन फॉर्म में हर जो है रो जो है उसका पिवट एलिमेंट हो। अगर हर रो का पिवट एलिमेंट होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वन टू वन बनेगी। किस लिए बनेगी कि आपका Ax इक्वल 0 जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आज के लेक्चर में मैंने बस आपको जस्ट रिकॉल करवाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए हैं, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में बार बार आती रहेगी। As I told you that we have finished the first part of our course of the linear algebra, and this 10th lecture was a revision lecture. In the next lecture, in the 11th lecture, which means in the 11th lecture, we are going to study the second part of our system of course of the linear algebra, which consists of the मैट्रिक्स अलजब्रा। मैट्रिसेस के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, और कुछ मैट्रिसेस की फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, विच विल रिलेट ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स एंड द फोर्थ कमिंग कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि ईजी पार्ट है हमारे कोर्स का लीनियर अलजब्रा का, इसको नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम करेंगे। So we are at the end of our lecture. I will see you in my next lecture, which will be the 11th lecture. Allah Hafiz and take care.